हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंज्यूम food by our mouth and then chew it, and then different salivary glands act on the food and make it very smooth so that we can swallow it through our food pipe or esophagus. Pharynx, as you can see, is situated here, which is a sound box. Parotid gland are the salivary gland which secrete saliva and other antimicrobial enzyme in the form of saliva. And by this food pipe, food comes below and enter the stomach. After that, many different enzymes like trypsin, chymotrypsin, digestive protein, and other enzyme lipase act on the fat and it get digested. And then this is the pancreas. It also secrete different enzyme like insulin in order to digest the sugar, to maintain the sugar level. Here you can see liver and gallbladder. And then food comes below and enter the small intestine through jejunum. Small intestine is made up of three parts. This is jejunum, ileum, and here we have duodenum. Yes, duodenum. And then the food enter the large intestine, which is consist of part cecum, ascending colon, transverse column, descending colon, and then it entered the rectum, and then finally it comes out from the body. Here if you see, I have drawn the transverse section of gut, which is the alimentary canal. The outer part is consist of serosa, and then muscular, outer longitudinal and inner circular part. This is outer longitudinal and inner circular, which is known as muscular. Serosa, muscular, submucosa, mucosa, and finally the inner lumen. Here if we read, the serosa is the outermost layer and is fibrous coat made up of thin mesothelium with some connective tissue. Serosa is the outermost. The muscularis is the, as I have said, the outer longitudinal and inner circular portion. Submucosa, outside the mucosa form loose connective tissue, blood vessel and lymph vessel. And submucosa का जो function है वो क्या है? It supplier with nerves, duodenal gland, and also seen in submucosa. Duodenal gland वगैरह भी जो है submucosa में present रहते हैं. Next is mucosa. It is the innermost lining layer of the lumen of the alimentary canal. Mucosa is the innermost. It has moist and friction resistant lining of epithelium. Secretory and absorptive cells are found in the epithelium, which is the globed cell, which is important, of the epithelium. Secrete mucus. Globed cells secrete mucus, act as lubricant and protect the surface of the damage and surface from the damage. When the stomach is empty, the mucosa and submucosa are thrown into larger fold called rack. Next page में अगर आप देखेंगे तो I have drawn this pancreas, which is gallbladder, connected to gallbladder and duct from the liver. These both duct from the gallbladder, उसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, जो कि लिवर और गैल ब्लैडर को कनेक्ट करती है. उसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. और फिर इसको हम जब ये जुड़ जाती है तो उसको हम हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं. हिपैटो मीन्स लिवर एंड पेनक्रियाटिक मीन्स पेनक्रिया. हिपैटो पेनक्रिया डक्ट जो है यहाँ पर रिलीज़ करते हैं. ये रहा पेनक्रियाज, ये रहा पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से. फिर ये डुओडेनम में कनेक्ट करता है.
नीचे अगर आप देखेंगे तो पेनक्रियास के बारे में दिया हुआ है और उसको बोलेगा कि ये क्या है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ऑर्गन है होता है ये, और एक्सोक्राइन यानी कि उसके पास डक्ट हैं और उसको बोलते हैं, उसमें हम क्या सेक्रेट करते हैं, एसिनार एंड डक्ट टिश्यूज़ होते हैं। और जो एंडोक्राइन है उसमें डकलेस होता है, डक्स नहीं है, डायरेक्टली रिलीज होगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं सेल्स इसमें, जो कि सेक्रेट क्या करते हैं, सेक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागन। अल्फा सेल सेक्रेट ग्लूकागन, बीटा सेल सेक्रेट इंसुलिन विच लोवर्स द ब्लड शुगर लेवल, अल्फा सेल सेक्रेट ग्लूकागन विच इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, डेल्टा सेल सेक्रेट्स सोमैटोस्टैटिन। और ये आ गया स्टमक। स्टमक जो है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। कहाँ लोकेट करता है, अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में, और लार्ज मस्कुलर बैग जस्ट बिलो द डायफ्राम विच इज शेप सी शेप्ड, है ना, डायफ्राम के बिलो लोकेट करता है। देर आर 3 रीजन इन द स्टमक दैट आर फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरस। ये रहा ऊपर फंडस, बीच में कार्डियक और नीचे पाइलोरिक, और यह है सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में रिलीज़ करता है। सबसे पहले खाना एंटर करेगा फंडस में। जिस स्वॉलो को जब हम करेंगे तो इसोफेगस से डायरेक्ट कहाँ ओपन होता है, फंडस, ये रहा फंडस। अब जो है नीचे खाना आएगा, उसमें डाइजेशन होगी कार्डियक मसल में। मिडिल रीजन ऑफ द फूड इज स्टोर्ड, फूड कहाँ पे स्टोर है, कार्डियक रीजन में। और नीचे जो है पाइलोरस और एंट्रम, ये क्या कर रहा है, इट इज़ अ पोस्टीरियर नैरो रीजन विच लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या लीड कर रहा है, पाइलोरिक रीजन, है ना। बाय द ओपनिंग कॉल पाइलोरिक ऑरिफिक गार्ड बाय रिंग शेप्ड मसल कॉल पाइलोरिक sphincter. When it relaxes, the food material passes into the small intestine. Numerous gastric glands are present in the wall of the stomach, which secrete gastric juices. That's it. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही बड़ा है। अभी हमने स्टमक के बारे में देखा, अब हम जहाँ स्टमक ओपन कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, कॉइल्ड नैरो ट्यूबुलर एंड फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बड़ा, सबसे लंबा कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये 7 से 9 मीटर लॉन्ग है, लाइज इन द एब्डोमेन, है ना। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू डोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डोडेनम, जेजुनम एंड इलियम में डिवाइड होता है ये देखिए, डोडेनम ये रहा, जेजुनम ये रहा और इलियम ये रहा। डोडेनम ऊपर से ये है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्ट टू शो यू। डोडेनम जो है फर्स्ट पार्ट है और ये कर्व्ड होता है एंड फॉर्म द लीवर एंड पेनक्रियास ओपन इनटू डोडेनम बाय कॉमन डक्ट। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है ना, डोडेनम में ओपन होते हैं। अब आ गया जेजुनम। जेजुनम के बारे में क्या स्पेशलिटी है, डोडेनम इज़ फॉलोड बाय जेजुनम एंड इज़ लॉन्गर देन ड्यूडेनम, ठीक है। अब इलियम आ गया लास्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अबाउट 7 मीटर इन लेंथ, लॉन्गेस्ट है ये इलियम, हाईली कॉइल्ड एंड ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन इन द लोअर राइट रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखिए नीचे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सा हो रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये तीनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ मच शॉर्टर एंड वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 रीजन, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम। सीकम जो है कह रहे हैं कि स्मॉल पाउच इन ह्यूमन है और ब्लाइंड फिंगर शेप प्रोसेस राइजिंग फ्रॉम द सीकम इज़ अ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। जो इसका मतलब जो है ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है जो कि सीकम में फाउंड होती है, वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसको कि हम अभी यूज़ नहीं करते हैं, जो कि होस्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये रही है सीकम, ये देखिए, है ना, ये रही लार्ज इंटेस्टाइन हमारी, असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलम। अब आ गया कॉलन के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कॉलन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू असेंडिंग कॉलन रनिंग अपवर्ड, ट्रांसवर्स कॉलम रनिंग अक्रॉस द एब्डोमेन, मतलब ऐसे, एंड डिसेंडिंग कॉलन रनिंग डाउनवर्ड्स। द डिसेंडिंग कॉलन इज कंटिन्यूड
into the rectum, ठीक है. The rectum stored the feces temporarily and open through the anus. रेक्टम जो है वो फीकल मटेरियल स्टोर करता है जो कि एनस में ओपन करता है और फिर रिलीज़ कर देते हैं. द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्स एसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर्स. 4 लेयर्स कौन सी हैं? वही वाली जो हमने पहले पढ़ी थी, सेरोसा, मस्कुलरिस एंड सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. ठीक है. म्यूकोसा में ग्लोबेट सेल होते हैं जो भी लुब्रिकेट करते हैं हमारे खाने को. ठीक है. अभी जो है थोड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं अगर हमने इतना कुछ पढ़ लिया तो. सलाइवरी ग्लैंड होते हैं द पैरोटिड चीक, द सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर लोअर जो एंड द सब लिंगुअल बिलो द टंग. ये सब क्या करते हैं? सलाइवा इज़ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड 1.5 लीटर पर डे. एल्कलाइन होता है सलाइवा इन ह्यूमन कंटेन स्टार्च, डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज एंड एन एंटी माइक्रोबल एजेंट नॉन एज लाइसोसोम. ये सारे जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड में सिक्रेट होते हैं. सलाइवा कंटेन इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन बाइकार्बोनेट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, म्यूकोसा एंड सेरोसा फ्लूइड. ठीक है. अब जो है अब आ गया लीवर. लीवर भी हमारा ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर, है ना. और लीवर जो है उसके पास रीजनरेटिंग पावर भी होती है. कितना इंपॉर्टेंट है लीवर आपको पता है? लार्ज ग्लैंड ऑफ बॉडी है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है जो कि 1 से 1.5 किलो का होता है. लोकेशन क्या है? एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ द 2 लोब. भी हम आपको फिर से लीवर दिखा देते हैं. ये देखिए लीवर, इट हैज़ 2 लोब और एब्डोमिनल कैविटी में होता है ये. The hepatic lobule are the structural and functional unit of liver containing hepatic cell arranged in the form of cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheet called the Gleason capsule. The bile secreted by the hepatic cell passes into the hepatic duct and stored and concentrated in the thin muscular sac called the gallbladder. Gallbladder में क्या स्टोर होता है? जो हिपैटो हमारा जो बाइल सेक्रेट होता है वो gallbladder सेक्रेट करता है. क्या आप जानते हैं कि कभी कभी किसी को गैल ब्लैडर स्टोन्स बन जाते हैं, फिर उनका पूरा का पूरा गैल ब्लैडर जो है मशीन्स के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है. तो फिर उनका इसका मतलब स्टोर नहीं हो पाएगा, ये जो बाइल है डायरेक्ट रिलीज होगा, है ना. द डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट फॉर्म्स द लिवर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट. यहाँ क्या बता रहे हैं? ये वही है जो हमने पहले पढ़ा था, है ना. गैल ब्लैडर और लिवर का जो कॉमन बाइल डक्ट के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट पेज में क्या है ज़रा देखें तो. अब जो है ये विलाई का स्ट्रक्चर है. ब्लड वेसल है अंदर, ऊपर लेक्टेल है, कैपिलरीज है, द थिन सरफेस है ना. विलाई क्या होता है भाई? विलाई वो होता है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है हमारे, जो कि एब्जर्व करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डाइजेस्ट हो रहे खाने से निकल कर आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा है ना. फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर रहा है, फिर जिससे हमें एनर्जी आ रही है. फिंगर लाइक यहाँ पे बोला स्ट्रक्चर ऑफ विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. ईच विलाई कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये रही कैपिलरीज, एंड नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल एंड एन आउटर लेयर ऑफ कोलुमिनार एपिथेलियल सेल. ठीक है भाई. इम्पॉर्टेंट क्या है? इधर एट द सेंटर ऑफ ईच विलाई देयर आर लार्ज सेंट्रल लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टियल. विलाई का फंक्शन इंपॉर्टेंट है. विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन म्यूकोसा एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इपिथेलियल सेल ऑफ द विलाई, है ना. इपिथेलियल सेल ऑफ द विलाई से क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है. Villi are supplies with a network of capillaries and a large lymph vessel called lacteal. ठीक है. ठीक है, तो यही है इसका फंक्शन. और आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप दैट इट हैज़ हेल्प यू गाइज. थैंक यू सो मच.